Hello students, I hope you all are doing well, and yes, I'm also hoping that you all have jotted down all the relevant or crucial informations or have made your own notes from the lectures. See, just get this thing very straight. Classes are going to be go like this only, okay, for a while till things get settled amid this COVID-19 impediments. Okay, so be focused and just think like this, that we do not have the time to revise again. If you are thinking that classes will go again in college and we will study all these things again in classes, so no, these things are not going to happen. So whatsoever we are teaching or other teachers are teaching in the lecture series, or whatsoever way they are telling you to do the things, just make sure that you do those things. All right. So yes, uh, we have halfway done. I think we have done one paragraph of the poem, and yeah, okay, we before we go directly into the poem, let's revise what we have studied. Okay. uh, Make one thing very make a habit that you should revise everything whatsoever you are studying. Just make sure that you revise every time. Okay, so we have studied Alexander Pope. Okay, we have gone through some of the biography of Alexander Pope. We have studied to which age he basically he belongs to neoclassical age, right? 1700 and 1798, it is the classification or the time period of the neoclassical or Augustan age. This age is also called Augustan age. Okay, age of reason, age of enlightenment. Okay, we have studied things uh, related to his life and works, what he has done and how he was physically deformed. He was ill, but by then he do not let his illness come into his way, and uh, he rather overcome it, right? He has reached his glory. He was the most representative writer of the age, right? So never let any obstacle come into your ways. Always go, um, you know do not think that there are obstacle and we are not going to cross it. Just make sure that you fight. All right, so this is also a warlike situation where we have stuck, and yes, we all will together fight against this epidemic. Anyways, okay, so we have studied that he was born in Lombard Street, London. He was educated largely at home and all those things. Okay, hope you have searched in Google some things or the biography of Alexander Pope. All right. So we have talked about literary feature of the age, all those things, the major influence and whatsoever. All right. Okay. Yes, this is important. Let us revise this. This poem is taken from the essay on men. It is a didactic poem in heroic couplet. It is written in heroic couplet, published in 1734, written in 4 epistle. Okay, so this is epistle second. Just write down that this epistle was named as Of the Nature and State of Men. Okay, of the nature and state of men. All right, you are going to impress the examiner who is going to check your copies. All right, just write down that this epistle second is titled as Of the Nature and State of Men. All right, so this poem is written in 4 epistles, and this is second epistle. All right, so let's go directly to the text. We already have, I guess, studied these lines. Okay, so let's just basically revise it again. So what we have studied, that a human should know himself, and he should not wait for God to give some comments or some judgment about how a person is.
So basically the proper study of a mankind is man itself. And yes, writer, poet is here saying that men, he is a superior self, right? He is superior than others, and at the same time he is very mysterious. Okay, he is placed on this isthmus. Isthmus is basically earth. He is placed in middle of the earth. Okay, and he has a dark side. He's darkly wise, rudely great, right? These are the great lines, that a human or a man, he is rudely great. He has gathered too much of knowledge for the septic side. Okay, when one gathered too much of knowledge, okay, these lines, they are this depict the element of रेनेसा. ओके, रेनेसा पता है ना, पुनर्जागरण का जो टाइम था, रेनेसा का एक एलिमेंट है that they're crazy about knowledge. Okay, they want to find the unknown, to know the unknown. Okay, तो रेनेसा का जो पीरियड था उसमें क्या हुआ था? There were greater number of discoveries. अमेरिका उस टाइम जो था खोजा गया था. इंडिया उस टाइम डिस्कवरी जो थी इंडिया की हुई थी, राइट? तो ये जो सारे एलिमेंट है रेनेसा के एलिमेंट है, दैट वन इज़ ऑब्सेस्ड विद टू मच ऑफ नॉलेज. Okay, or with too much weakness for the stoic pride. Okay, so he is basically hung between. Okay, he is what? He is between all of this and in doubt to act or to rest. Okay, in doubt his mind or body to prefer. किस चीज़ को वो preference दे? He is just hung between all that. He's alike in ignorance, his reason such. Okay, so basically we have to, okay, so man, he is alike in ignorance, his reason such. Alike in ignorance. Okay, man is ignorant. Ignorant क्या होता है? देखो दो डिफरेंस होता है ignorance और foolishness में. Ignorant कौन होता है? That one who do not have the knowledge. एंड फुलिश कौन होता है? फुलिश वो होता है जो जिसको पता है, ही हैज़ द नॉलेज बट ही इज़ डूइंग समथिंग विच इज़ फुलिश. ओके, यू कैन से दैट deliberately he is doing something which can term him as a foolish, but you cannot say an ignorant person a foolish. Ignorant person is not stupid, right? He is just ignorant, उसको नहीं पता, राइट? सो क्या यहाँ पे पोएट बोल रहा है? दैट ही इज़ अलाइक इन इग्नोरेंस, हिज रीज़न सच. सो मैन इज़ इग्नोरेंट, हिज रीज़न इट फेल्स टू डायरेक्ट हिम टूवर्ड्स द राइट पाथ. हिज रीज़न सच, ठीक है, उसके जो रीज़न्स हैं, रीज़न यहाँ पे देखो कारण को नहीं बोल रहा है, रीज़न यहाँ पे इंसाइट को बोल रहा है, उसके माइंड को बोल रहा है. दैट हिज रीज़न, because he is ignorant, his reasons fails to direct him towards the right path, whether he thinks, why? इसका reason जो है next line में उन्होंने दिया है, because he thinks too little or too much. See, thinking too little and too much, both of these situations are dangerous, because if you think too little and act very fast, right, you haven't think anything and you just go into the action, that this thing will be very dangerous to you. And if you think too much, एक स्टेप लेने से पहले आप 10 बार चीज़ें सोच रहे हैं, तो ये भी क्या है? डेंजरस प्रोग्रेस है. ठीक है, आपको खाना खाना है लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नमक ज़्यादा हो गया या मिर्ची ज़्यादा हो गई या खाना मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो ये क्या है? ये ओवर थिंकिंग है. तो ये वो कहता है कि ये आप कह सकते हैं ये क्या है? फुलिशनेस हो जाएगी. देन दैट इज़ नॉट इग्नोरेंस, राइट? सो वो कहता है कि ह्यूमन ही इज़ अलाइव लाइक इन इग्नोरेंस, इन रीजन सच, ही थिंक्स टू लिटिल और थिंक्स टू मच. ओके, chaos of thought and passion. chaos क्या होता है? chaos होता है डिसऑर्डर. ओके, जब डिसऑर्डर हो जाता है, ओके, डिसऑर्डर यानी डिसऑर्डर सिंपली आप उसे
डिवाइड करिए कि ऑर्डर में डिस्टर्बेंस, राइट, कि जहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ जो ऑर्डरली चल रही थी उसमें क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, तो दैट बिकम अ chaos, राइट. देर आर chaos ऑफ थॉट्स एंड पैशन. थॉट्स और पैशन. पैशन क्या होता है? थॉट्स तुम्हें पता है आई थिंक. पैशन क्या होता है? पैशन इज इमोशंस, कि आपकी जो इमोशंस हैं, आपके थॉट्स में chaos हो जाता है. कैसे chaos होगा? बिकॉज यू आर थिंकिंग टू लिटिल और यू आर थिंकिंग टू मच, और क्या हो जाएगा? ऑल कन्फ्यूज्ड, एंड यू विल बिकम व्हाट? कन्फ्यूज्ड. कन्फ्यूजन जो है वो जनरेट हो जाएगा बिकॉज यू हैव लॉस्ट इन द थॉट्स एंड पैशन, because of your overthinking or because of your less thinking, because the reason is because you are ignorant. Human is ignorant, okay? He do not understand what one should do because his thoughts, he is just lost in his thoughts and passions, in his emotions, in his intellect, whether he should listen to his heart or he should, use his reasoning, or you can say head. So when we saying head and heart, by head we means using intellect, दिमाग का इस्तेमाल करना, and when we say heart, तो heart का मतलब क्या होता है? that दिल से सोचना, emotional होके सोचना. So thus he is what? He is just a bundle of confusions. Okay, तो जो human है, human की जो ignorance है या human का जो existence है वो क्या है? contradictory है. हमने शुरू में भी पढ़ा था that what a person should do, one should just know himself rather than waiting for somebody else or God to scan you. You should do what? You should scan yourself. You should analyze yourself. Okay, that we know that we are what? Creatures of contradictions. Man क्या है? He is knowledgeable but at the same time he is ignorant. Man is master but at the same time he is slave. Alright, तो man जो क्या है वो बीच में है. Okay, he can be goddish but he can be devilish too. Okay, so what human is? Human is an ignorant person. He is all confused. There has been a chaos of thoughts and passion, still by himself abused or disabused, right? He is what? Still by himself. He is still by himself abused or misabused. ठीक है? So basically what? He is just insisting to explore the nature of mankind. The poet described that the truth of life is that man himself failed to understand his mind and reason. ठीक है? वो खुद के ही माइंड को, खुद के ही रीजनिंग को, खुद के ही हेड को नहीं समझ सकता. ओके, ये क्या है? एक तरीके से मिडल में है. जैसे उसने बोला कि ही हैड ह्यूमन हैज़ बीन और मैन हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन दिस इस्थूमियस. ही इज इन द मिडल स्टेट. क्रिएटेड हाफ टू राइज. ओके, ये अब क्या बता रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ मेन और मेन्स पावर. ही इज ट्राइंग टू. अगर इस तरीके से ये 4 लाइन्स आ जाती हैं या ये 4 लाइन्स आ जाती हैं तो अलग अलग तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे. इन लाइन्स में आप ये लिख सकते हैं दैट द पोएट इन दीज लाइन्स इज नरेटिंग मेन्स पावर अलॉन्ग विद हिज अनसर्टन नेचर. राइट, ये अनसर्टन नेचर ही तो है. That we are lost in thought and passion, we are all confused, we are still by himself abused or disabused. Okay, so you can see here ये क्या हो रहा है? couplet, heroic couplet. You can see human को एक heroic person की तरह present कर रहे हैं. ठीक है, एक हीरो की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश करी जा रही है, जो क्या है कि उसमें एक वाइज साइड भी है बट एक इग्नोरेंट साइड भी है. वो गुड भी है, वो बैड भी है. ठीक है, उसके पास दिमाग भी है बट वो मिस्टेक भी कर रहा है. ही वॉज बोर्न बट टू डाई. राइट, तो ये क्या है कि ही इज़ थिंकिंग टू लिटिल बट ही इज़ थिंकिंग टू मच.
तो ये क्या है, ह्यूमन की एक हीरोइक पावर या एबिलिटी को यहाँ पर डिपिक्ट करने की कोशिश करी जा रही है. सो दैट्स वाई ये जो होल पोएम है, इट इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट, बिकॉज यू आर सेंसिंग सम हीरोइक एबिलिटी, some flaws of human being. Okay, so created half to rise, half to fall. Getting it? God has created a balanced personality. Balance करने के लिए half to rise and half to fall, because he know that he has seen the both rise and fall. Getting it? Man जो है, he is ready to see his rise, to see his fall. He has seen both of the things. Rise को भी देखा है. Rise मतलब क्या होता है यहाँ पे? Rise को क्या होता है? Sunrise in east बोलते हैं ना. तो सन क्या करता है? उगता है. तो यहाँ पे देखो ह्यूमन तो उग नहीं सकता. तो rise मतलब यहाँ पे क्या होता है? ग्लोरी को अचीव करना. आपके कोई टास्क है, अपने लाइफ में आपने कुछ अचीव किया है, तो ये यू हैव राइजन फ्रॉम योर स्टेटस, यू हैव राइजन टू अ स्टेटस, राइट. आप स्टूडेंट थे, कल के दिन आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा? स्टेटस राइज हो जाएगा. सो ही इज सेइंग दैट ही वॉज क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल. ही इज़ ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स यट अ प्रे टू ऑल. देखो कितनी इंटरेस्टिंग लाइन ये है, दैट ही इज़ अ ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग. ओके, ही इज़ लॉर्ड, ग्रेट लॉर्ड. अगेन ह्यूमन की सुपीरियरिटी को ये दिखाता है कि ह्यूमन जो है कितना सुपीरियर है. ही इज़ लॉर्ड टू ऑल थिंग्स, बट एट द सेम टाइम ही इज़ प्रे टू ऑल. प्रे क्या होता है? प्रे होता है शिकार. ओके, प्रे क्या होता है? शिकार. एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ही इज़ स्लेव और ही इज़ प्रे टू एवरीथिंग. वो शिकार है, ठीक है. वो लॉर्ड भी खुद है, ठीक है. मास्टर भी खुद है, सर्वेंट भी खुद है. गेटिंग दिस पॉइंट? ही इज सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर. एंडलेस, ओके, व्हाट इज दिस? ही इज सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हर्ड. ओके, तो वो क्या है? ही इज द सोल जज ऑफ ट्रूथ. ठीक है. अगेन वही कॉन्ट्राडिक्शन, दैट ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल द थिंग बट एट द सेम टाइम ही इज प्रे टू ऑल. वो क्या है? सोल जज है ट्रूथ का, बट एट द सेम टाइम ही हैज़ एंडलेस एरर. ही डू एंडलेस एरर इन हिम. ओके, कि वो क्या कर सकता है? एंडलेस जो है एरर करता है. ठीक है. इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इसकी जो एक ग्रेटनेस है, ठीक है, जब वो, आप किसी चीज़ को ग्रेट कब बोलते हैं? कि जब कोई भी चीज़ ग्रेट तब होती है या फिर परफेक्ट तब होती है जब किसी तरीके की मिस्टेक्स नहीं होती. ठीक है. तो ह्यूमन क्या है? ही इज़ द सोल जज ऑफ ट्रूथ, बट एट द सेम टाइम ही इज़ व्हाट? ही इज़ डूइंग द एरर्स. एरर्स भी वो कर रहा है. ही इज़ थ्रोन इनटू कमिटिंग मिस्टेक्स. ओके. सो ये सब क्या दिखाता है? ऑल दीज थिंग्स शोज द मिस्टीरियस नेचर ऑफ मैन. सो पोप इज डूइंग व्हाट इन दीज लाइन्स? ही इज रीचिंग अ मेटाफिजिकल सब्लिमिटी. ओके, एक मेटाफिजिकल सब्लिमिटी, जब आप क्रिटिकल कमेंट्स लिखेंगे आप लिख सकते हैं कि ये एक तरीके की मेटाफिजिकल सब्लिमिटी है, सब्लिमिटी की स्टेट है. ओके, अब क्या है देखो, मैन इज़ द सोल जज ऑफ ट्रूथ. ठीक है. बट एट द सेम टाइम ही हैज़ थ्रोन हिमसेल्फ. हेरल्ड मतलब होता है थ्रो करना. थ्रो करना यानी कि वो गिरा हुआ है. किसमें? इन कमिटिंग एंडलेस एरर्स. मैन इज द ग्लोरी, ओके, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ड. मैन इज व्हाट? मैन इज द ग्लोरी एंड जेस्ट. जेस्ट क्या होता है? कि जब हम कोई जोक कर रहे हैं, कोई फनी इंसिडेंट्स, दैट इज जेस्टिंग. ओके, कॉमेडी जो हम बोलते हैं, दैट मैन क्या है? ही इज़ द सोल जज ऑफ ट्रूथ, बट एट द सेम टाइम he do commit mistakes.
So man is what? He is the glory, jest and riddle of the word. रिडल जो वर्ड है इससे आपको क्या पता चलता है? दैट ही इज़ मिस्टीरियस. जो फर्स्ट लाइन में उसने बोल दिया था कि वट, कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग मिस्टीरियस है. तो ये जो पोएम है ये बेसिकली इसका जो फोकस है वो किस चीज़ पे है? दैट इट इज़ बेसिकली वट, it is indicating the ways of God to men. Okay, he is just justifying the ways of God to men, कि कैसे ह्यूमन को गॉड ने बनाया है, क्या पर्पस होना चाहिए. और राइट, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे बताई जा रही हैं. ओके, सो मैन इज़ व्हाट? द ग्लोरी, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ड. ओके, so he is the biggest mystery of the word, he is the biggest riddle of the word. Then what the poet say here? Go wondrous creature, mount where signs guide. Again, poet is indicating the usage of science in it, right? साइंस की जो यूसेज है उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है दैट ह्यूमन इज़ व्हाट? ही इज़ अ वंडरस क्रिएचर. सो माउंट वेयर साइंस गाइड्स यू. व्हाट इज़ माउंटिंग? माउंटिंग इज असेंडिंग, चढ़ना. दैट यू शुड डू व्हाट? दैट बिकॉज अ मैन हैज सीन बोथ राइज एंड फॉल, fortune and misfortune, happiness and sadness. So human is a wonderful creature. How a person can see all those things. एक छोटा सा इंसान वो क्या कर रहा है? इतनी सारी चीज़ों को फील कर रहा है, महसूस कर रहा है. He has seen rise, his fall, happiness, sadness, all those things. तो at the same time तो वही जो पर्पस उसका है, इस पोएम का जो पर्पस है कि क्या? You should analyze yourself. एनालाइज करने से क्या है, क्या मतलब है? दैट आवर थिंकिंग एंड स्टडी, इट शुड बी डिवोटेड प्राइमरली टू अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ मैन. गेटिंग इट? तो वही चीज़ यहाँ पे एक इन्वोकेट ये करने की कोशिश कर रहा है. ओ वॉन्डरस क्रिएचर, गो वॉन्डरस क्रिएचर, माउंट वेयर साइंस गाइड. Getting it? The contradiction in the poem. One way he's saying that God has created, supernatural element, but at the same time he is advising men to mount, to ascend where the signs guide you. Go, measure earth, wait here, state the tide. He's just going, invocating men to just go, measure the earth, wait here, state the tide. ये सारी तुम जो क्या करो, चीज़ें करो, इन्वेंशन करो. रीच द हाइट ऑफ साइंस. ओके, ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं. मेजरिंग अर्थ, वेटिंग एयर एंड रेगुलेटिंग द वेज ऑफ द ओशन. ओके, इंस्ट्रक्ट द प्लैनेट इन व्हाट ऑर्बिट टू रन. ओके, वही जो हीरोइक क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की वो बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है. दैट इंस्ट्रक्ट द प्लैनेट इन व्हाट ऑर्बिट टू रन. Okay, you have that power that you can instruct the planet in what orbit to run. Okay, he's just trying to be like, follow the signs. You can change everything. It's not literally that a man can instruct a planet to go on the orbs. देखो ये orbs का मतलब है orbit. Revolution और revolution हमने पढ़ी थी ना, दो चीज़ें. Revolution and revolution दोनों. Orbit, instruct the planet in what orbit to run, correct old time, regulate the sun, go soar with Plato to the imperial sphere. Okay, so ये सारी qualities वो से कह रहा है कि just mount the science, conquer the earth with your science. Don't be an ignorant. Ignorant बन के नहीं रहना है. Don't be an ignorant. Gather knowledge. Do everything. Okay, you are capable of everything, achieve everything. Search the mysterious. जो अर्थ है, वो जो मिस्ट्री से भरी हुई जो अर्थ है, उसे आप क्या करो? उसे ढूंढो, एक्सप्लोर करो. ओके,
You have the capability to control the whole nature. Okay? So ये क्या है? It is just glorifying men's position and status. It is a sort of mock epic style. Getting it? He is expert in writing in mock epic. ये mocking है. It is a way of mocking a man. Men do not have, get this thing very straight, men do not have the ability to control earth or control nature. He is just mocking in a way. Okay? ये क्या है? मॉकिंग यहाँ पे चल रही है. मॉक एपिक स्टाइल में ये जो सारा इन्वोकेशन है वो यहाँ पे चल रहा है. टू करेक्ट द ओल्ड टाइम, रेगुलेट सन. वी कैन नॉट रेगुलेट सन. वी कैन नॉट इवन गो नियर टू द सन. वी विल बर्न. वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट प्लैनेट टू रन in what orbit that a planet should orbit. Okay, to the first good, first perfect and first fair. So प्लेटो ने, देखो यहाँ पे प्लेटो का नाम आ रहा है. Plato has said that men first should love God and then love of God will lead him to फ्रीडम पे या इम्पीरिकल स्पेयर की वो बात कर रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, इफ़ ह्यूमन लव गॉड देन ओनली यू विल बी परफेक्ट. गेटिंग इट? देर विल बी सम डिवाइन एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन दैट मेक यू परफेक्ट. प्लेटो का जो इम्पीरिकल स्फेयर की जो बातें थी, ठीक है, दैट ही जो प्लेटो की यहाँ पे बारी, गो सोर विद प्लेटो टू द इम्पीरियल स्फेयर. क्या यहाँ पे एडवाइस कर रहा है? दैट ही शुड सोर विद व्हाट? सोर विद प्लेटो टू हेवनली स्फेयर एंड शुड इमेजिन द थिंग्स बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. ओके, तो प्लेटो जो है वो भी एस्ट्रोनॉमर एक सॉर्ट ऑफ था. एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? जो प्लैनेट को मेजर करते हैं, प्लैनेट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है. तो वो कहते हैं वो क्या करना चाहिए कि ह्यूमन को प्लेटो के साथ, प्लेटो देखो यहाँ पे एक मिस्टीरिकल फिगर की तरह यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, इम्पीरियल स्पेयर को मेजर करने की, टू द फर्स्ट गुड, द फर्स्ट परफेक्ट. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी द फर्स्ट गुड एंड फर्स्ट परफेक्ट एंड फर्स्ट फेयर. तो इसी से इन चीज़ों से ही क्या होगा? ही विल इंजॉय द फेयरर थिंग्स. ओके, men may reach the highest goal. Alright, ये सब क्या है कि हाईएस्ट जो गोल है, फर्स्ट फेयर हो जाएगा. ही विल बी द फर्स्ट परफेक्ट, फर्स्ट गुड, परफेक्ट हो जाएगा. ही विल बी द परफेक्ट, ही विल बी द सिंबल ऑफ ए परफेक्शन. और ट्रेड द मेजी राउंड हिज फॉलोवर्स ट्रोड. ओके, तो फॉलोवर्स ट्रोड से क्या मतलब है? तो देखो यहाँ पे प्लेटो की बात हो रही है. तो वो क्या कह रहा है कि ये जो फिलोसफर थे, एशियन ग्रेट थिंकर्स थे एंड फिलोसफर्स थे, तो मेन को क्या करना चाहिए कि उन्हें इन वेज को फॉलो करना चाहिए. राइट, ये जो जितने भी फिलोसफर हैं, जो ग्रेट थिंकर्स हैं, इन्होंने जो भी वेज दिए हैं, इनको फॉलो हमें क्या करना चाहिए? इनको फॉलो करना चाहिए. और तभी हम क्या कर सकते हैं? वी विल अचीव द परफेक्शन. एंड quitting sense call imitating God. Okay, तो क्या करना चाहिए? That we should do what? We should quitting means होता है vacate करना. vacate यानी खाली करना या छोड़ना. कि हमें क्या करना चाहिए? अपनी जो सेंसेस है उसमें इमिटेट, गॉड को इमिटेट करना छोड़ना चाहिए. और क्या करना चाहिए? दैट ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स होता है वॉक द मेजी राउंड हिज फॉलो स्ट्रोड. इन क्विटिंग सेंस कॉल इमिटेट गॉड. ओके, अब देखो ये जो स्टोरी है, मैंने तुम्हें कई बार एडम एंड ईव की जो स्टोरी सुनाई थी कि गॉड हैज़ क्रिएटेड एडम, राइट. एंड एडम, हु वाज एडम? एडम वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन द अर्थ. तब अर्थ नहीं होती थी, एडन होता था, यानी हेवन होता था. एंड गॉड हैज़ क्रिएटेड एडन एंड द फर्स्ट person or the first man born was Adam, and then from Adam ribs Eve was created. So when we say the first fair,
फर्स्ट परफेक्ट, फर्स्ट गुड। तो एडम को जो कहते हैं हम, क्या होता है, फर्स्ट परफेक्ट है वो, ही इज़ द फर्स्ट परफेक्ट। फर्स्ट परफेक्ट क्यों है? बिकॉज गॉड हैज़ क्रिएटेड समबडी हु रिजेंबल हिमसेल्फ, हु रिजेंबल द गॉड। तो मैन क्या है, एक तरीके से रिजेंबलेंस है किसकी? गॉड इटसेल्फ, गॉड की ही रिजेंबलेंस है। तो वही वो कह रहा है कि वी शुड क्विट द सेंस कॉल इमिटेटिंग गॉड। ओके, क्या करना चाहिए? एक तरीके से क्या कर देना चाहिए कि वी शुड कॉन्कर नेचर। गॉड जो है, गॉड ने क्या करा है, पूरी अर्थ को बनाया है, अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं उनको बना रखा है। और हमें क्या करना चाहिए? एक तरीके से आयरनिकल है, थोड़ा सा मॉक एपिक है, बिकॉज मॉक एपिक के सेंस में से लिखा गया है कि ह्यूमंस की एबिलिटी, बट ये ह्यूमंस की एबिलिटी नहीं बता रहा है, एक तरीके से मॉक उसे कर रहा है कि इसे क्या करना चाहिए, दैट ही शुड हिज फॉलोवर्स ट्रोड। ओके, तो ये यहाँ पे एक तरीके से ये क्या कह रहा है, ट्रेड द मेजी राउंड हिज फॉलोवर्स ट्रोड एंड क्विट सेंस कॉल इमिटेटिंग गॉड। ओके, बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ह्यूमन शुड बिकम परफेक्ट इन इटसेल्फ, और इससे क्या है कि वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो गॉड से भी आगे निकल जाएगा, या फिर गॉड को इमिटेट करना बंद कर देगा। सो ओके, all right, so we have reached the last lines. Okay, तो जैसे वो कहता है as eastern priest in giddy circle run and turn their heads to imitate the sun. देखो यहाँ पे मॉक करने की कोशिश कर रहा है कि इमिटेटिंग जो है गॉड को, उसको करना, उसे बंद कर देना चाहिए। जैसे कि जो ईस्टर्न प्रीस्ट थे, व्हाट दे हैव डन, दे हैव ट्राइड टू, ईस्टर्न प्रीस्ट का देखो कुछ है इसमें कि ईस्टर्न प्रीस्ट ने क्या किया था, अपने जो हेड थे, यानी कि अपने जो बाल थे, उन्हें क्या कर दिया था, शेव कर दिया था मिस्टीरियस वे पे। दे थॉट दे वर इमिटेटिंग सन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, गिरी मतलब होता है डिजी वे में। सो व्हाट ईस्टर्न प्रीस्ट हैव डन, दे हैव ट्राई टू इमिटेट सन। ओके, दे हैव टर्न देयर हेड्स टूवर्ड्स सन एंड दे हैव ट्राई टू इमिटेट इट। ओके, तो उन्होंने क्या कर दिया था, सन को इमिटेट करने की कोशिश करी थी। देखो जो ईस्टर्न प्रीस्ट थे, ओके, व्हाट बेसिकली ही इज जस्ट ट्राइंग टू से हियर दैट ह्यूमन वांट टू अचीव ऑल द ग्लोरी, राइट। कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, ये एक तरीके से मॉकिंग कर रहा है। ही इज़ नॉट प्रेजिंग ह्यूमन बट ही इज़ रादर मॉकिंग इट, रिडिकुलिंग, right? What he said that you should achieve the highest of the science, do everything, command everything, command each and every element of the earth, and at the same time just quit the sense call imitating God, quit that sense, that call to imitate God. Okay, you should quit that sense, quit that insight जो तुम्हें क्या कह रहा है, गॉड को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, गॉड को फॉलो करने की कोशिश कर, वो वाला जो सेंस है तुम्हें उसको छोड़ दो। ही इज़ जस्ट मॉकिंग हियर। ओके, यू शुड फॉलो योर ओन पाथ। जैसे कि क्या कर रहा है, जो ईस्टर्न फिलोसफर्स थे उन्होंने किया था, ईस्टर्न प्रीस्ट की ये बात कर रहा है कि उन्होंने क्या करा था, दे हैव टर्न देयर हेड टू इमिटेट द सन। ओके, ये क्या है, ये कहने की क्या कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, ये जो परसूट्स हैं, स्पिरिचुअल परसूट्स हैं, उसमें भी एक तरीके से इन्वॉल्व होने की कोशिश करनी चाहिए। वन शुड ऑल्सो लर्न द इटर्नल विजडम ऑफ सेल्फ रूल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, गो टीच इटर्नल विजडम हाउ टू रूल, देन ड्रॉप्ड इनटू दाई सेल्फ एंड बी अ फूल। ओके, तो वो वही कह रहा है कि दैट यस, man could achieve the pinnacle of the glory, but at the same time he always remain a fool, a creature who is lost in superstition and hollow pride. Getting it? ये क्या है, एक तरीके से जो पोएम है ये एंड करती है
एक कंक्लूडिंग जो लाइन्स हैं लास्ट की, दैट ऑल राइट, यू नो, तो ऊपर वाली लाइन में तुम्हें लगेगा कि ओके ये क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है मैन को, एंड लाइक ही इज टेलिंग द मैन टू बी द परफेक्ट वन, बट एट द सेम टाइम जो कंक्लूडिंग 2 लाइन्स है उसमें ये कहना चाह रहा है दैट भले ही जो ह्यूमन है वो कितनी ग्लोरी अचीव कर ले, एट द सेम टाइम ही इज़ जस्ट अ फूल. Thyself, dropped into thyself. Okay, analyze yourself and you will find what you will find, that you are a fool. Eternal wisdom. Eternal wisdom is basically a quick reference to the God. You just told the eternal wisdom how to rule and then drop thyself and be a fool. What you will find, that you are a fool in yourself when you will observe it. Why you are a fool? Because you are a shallow creature. Okay, you have lost in the pride. You are a foolish person because you think that you will overrule everything, right? So he's just mocking the man and saying that okay, go teach eternal wisdom how to rule and then drop thyself and be a fool. Alright, so in this note we end this lecture. Okay, take care.